Very few days are left in the first phase of Bengal Assembly polls. And today, to discuss the issues related to polls, we are joined by Rajya Sabha member and BJP President Samik Bhattacharya ji. Samik da, welcome to organizer. दादा, अगर हम लोग पिछला 2021 का विधानसभा चुनाव देखें और इस बार का चुनाव देखें, तो पिछले बार का जो चुनाव था काफी वोकल चुनाव था, बट दिस टाइम एक साइलेंस है, एक फियर है अमॉन्ग्स द वोटर. हाउ डू यू? कोई फियर नहीं है. रेजोनमेंट जो है वो कुछ जगह दिखाई दे रहा है, कुछ जगह नहीं दिखाई दे रहा है. People have already applied into their mind that under any circumstances they are going to oust Trinamool Congress from West Bengal. This situation with हम लोग जिस रास्ते से अभी जा रहे हैं पश्चिम बंगाल, ये बर्बादी की तरफ. और दूसरा बात यह है कि हमारा डेमोग्राफी धीरे धीरे बदल रहा है. तो इट्स स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. जनता पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल ही देखना चाहते हैं, पश्चिम बांग्लादेश नहीं. ये उसका चुनाव है. आप अगर फाइनेंशियल मुद्दे पे बात करें, जैसे सर चाहे वो व्यापारी हो या एकदम गरीब तबके के लोग, मजदूर हो किसी कर का, सबका रिजल्ट आपको दिखाई. पूरा समाज एक खुला बाजार बन गया. एवरीथिंग इज बीइंग प्राइस्ड. कोई नया इन्वेस्टमेंट स्टेट पे नहीं आ रहा है. फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन. वी एवरीवेयर. वी हैव सी कोस्ट, वी हैव पोर्ट, वी हैव मेरिट, वी हैव skilled labor, we have manpower, we have geographical advantage. We are the gateway of Eastern India and gateway of the first world also. In spite of that, investment are not coming to West Bengal because West Bengal is no more an investment-friendly state. So for Shillur and Nandigram is concerned, both the cases they have sent a wrong message to the investors, not only in India but also abroad also. The Singur area could have been an international automobile hub. But the Trinamool Congress policy, which they have adopted, it is totally anti-poor, anti-farmer, anti-labor, anti-unorganized sector, and anti-industrial sector. You talked about industry thing, and recently we have seen TMC leader Mahua Moitra said that कि बंगाल कभी इंडस्ट्रियल का हब था ही नहीं और ना कभी हो सकता है. हाउ डू यू सी हर स्टेटमेंट? देखिए, लोग अभी तृणमूल कांग्रेस का कोई बात ले ही नहीं रहा है. इंडस्ट्री का जन्म तो पश्चिम बंगाल से हुआ. ट्रू. तो सारे देश का लोग पश्चिम बंगाल क्यों आते थे? अगर बिहार में एक जमाना था, दिवाली में कोई बच्चा अगर नया कपड़ा पहन लिया तो उसका दोस्त स्कूल में उसको पूछते हैं, तेरा पिताजी जरूर पश्चिम बंगाल में काम करते हैं. बिहार से लोग आते थे, यूपी से आते थे, ओडिशा से आते थे. कहाँ आ रहा है? इट्स अ स्टेट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स ओनली. Now people are moving from Exodus is going on. Exodus of capital, exodus of money, exodus of student, exodus of merit. आप बेंगलुरु चले जाइए, the second speaking language बेंगलुरु is Bengali. हम 3 साल के पुराना आंकड़ा आपको दे रहा हूँ. 14,62,000 qualified boys and girls are working there. It's a big number. It's a big number. That is what became a second speaking language. So this is the situation. You go to Sector 5, our software park. The qualified engineers, graduate engineers, they're working at the cost of 20 to 22,000 rupees. This is the present scenario. Everybody is waiting for a change. All the investors are also waiting for a change. Whether it is a semiconductor industry, whether it is startup, whether it is to set up a Make in India project, all branded, international brands, they are also waiting. So why these things happen? Trinamool Congress is responsible for this. They are responsible for jeopardizing the whole system. Post 2021,
a perception was created कि जो भद्र लोग है वो वोट नहीं करता है बीजेपी को. How do you see this? ऐसा नहीं हम लोग विश्वास करते हैं. अगर पूरा मुसलमान को बाहर कर दीजिए, लोग तो एंटी मुस्लिम हम लोगों को बना के रख दिया, बिल्कुल. तो पूरा 30% मुसलमान को अब बाहर कर दीजिए, तो आपका बचा कितना? 70%. And how much vote BJP got? 38.5. 38%. So then, majority people of the majority section, they belong Bangladesh. Lukhir Bhandar is a point of discussion in this election. To counter that, BJP come up with Annapurna scheme, and we have seen several videos. No, where- we are not going to counter anything. Okay. We are not in a position to counter or set up a counter narrative. So far, Trinamool Congress is concerned. लुखीर भंडार नाम पे ममता जी पैसा दे रहे थे 1000 रुपया. उसी समय से हम लोग बोल रहे थे कि किसी भी सोशल वेलफेयर स्टेट में जो मार्जिनलाइज पीपल है, जो महिला है, जो अशक्त जनता है, उसको सहायता करना ये सरकार की काम है. तो आप 1000 रुपया दे रहे हैं, 1000 के बदले आप थोड़ा रुपया बढ़ाइए, लेकिन वो बढ़ा नहीं सकते. तो महालक्ष्मी कैसे आएगा? लक्ष्मी आने के लिए स्टेट में तो शांति होना चाहिए. द टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, टोटल एनर्जी. Constitution doesn't exist in West Bengal. All constitutional authorities are being challenged by Trinamool Congress. At this point of time, Mamata Banerjee is not in a position to provide more money. So that we have decided that Lakshmi Devi is totally helpless. तो मैं हम उसका माँ के पास चले गए. जब माँ तुम चले आओ, तो अन्नपूर्णा काउंसिल चले आया. हम लोग 3000 रुपया करके. तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है इसको ग्राउंड पे जब आप लोग जा बहुत रहे हैं? बड़ा रिस्पॉन्स मिल रहा है. जनता खुश है, महिलाएं खुश है. और ऐसा नहीं है रुपया दे देने से आपका 5 तरफ वोट चले आएगा. अगर ममता जी का लक्ष्मी भंडार का असर हर महिला के ऊपर होता तो पंचायत चुनाव में बीजेपी इतना लूट का बाद भी 11,000 का ऊपर सीट से अपने प्रत्याशी को जिता नहीं पाता. उसमें भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हैं. वो लोगों को भी तो लक्ष्मी भंडार मिला, वो लोगों को भी तो साइकिल मिला, 25,000 रुपया करके मिला. देखिए ये सारे कॉपी है आपका वो मामा जी का लाडली लक्ष्मी योजना का. ये बिल्कुल. अब ये तो चलेगा, एक पीवीएस तो चलेगा, लेकिन उनका साथ साथ आपका एक्सचेकर का भी थोड़ा हेल्दी बनाना चाहिए. उसके लिए कोई योजना तृणमूल कांग्रेस के पास नहीं है. हम लोग इन्वेस्टमेंट लाएंगे. पश्चिम बंगाल में सब कुछ है. Investors are also ready. After becoming the president, I have been invited 2 times. One from Silicon Valley, another from New York, to meet certain Indian industrialists. और there are some qualified engineers. उसका कहना है कि हम लोग निवेश लाएंगे हमारा देश के लिए, बंगाल के लिए. तो बंगाली को देखिए, किसी भी जगह जाइए दुनिया में, किसी भी जगह चले जाइए, तो वो लोग प्रतिष्ठित है. चाहे सिलिकॉन वैली चले जाइए, चाहे नासा चले जाइए, चाहे यूरोप में कोपेनहेगन चला जाइए, बंगाली लीड कर रहा है. तो वो लोग वो प्रतिष्ठित है, अच्छा कमा रहा है, हाईएस्ट टैक्स पेयर के ब्रैकेट पे वो लोग हैं. और पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है? अब इस देश की किसी भी प्रोजेक्ट का नाम ले, इसरो से लेकर के एम्स तक, क्या बंगाली नहीं है? तो बंगाल में क्यों नहीं? ये जो कल्चरल रिजेनरेशन हो गया स्टेट का, पहले कम्युनिस्ट ने किया, उसका बाद तृणमूल कांग्रेस ने किया. तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि बीजेपी का बंगाल को लेकर प्लान तैयार है कि सरकार बनती है तो बंगाल को विकास के रास्ते पे किस प्रकार ले जाना है, इसको लेकर के प्लान हमारा तैयार है. बीजेपी मीन्स डेवलपमेंट. देखिए आज की दुनिया में राजनीतिक परिभाषा बदल गया है. टुडेज रिलीजन is democracy and today's politics is development. So for BJP's politics is concerned, our politics is decisive politics and Trinamool politics is divisive politics. तृणमूल कांग्रेस धर्म के नाम पर समाज को तोड़ रहे हैं. आज सारे सीमावर्ती जिला का जनसंतुलन बिगड़ गए. सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल को पैसेज बनाकर, एपिक सेंटर बनाकर वनांचल और सीमांचल, बिहार और झारखंड का भी डेमोग्राफी बदल गया. अभी लाभ जिहाद के साथ साथ लैंड जिहाद शुरू हो गया. इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री इज बीइंग कंप्रोमाइज्ड बाय दिस बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स.
एक जमाना था जिस समय मुस्लिम लीग का नारा था जो माइनॉरिटी हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड वी वांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लगे हिंदुस्तान। तो जो इस देश को नपाक बोलकर दरुल हर्ब बोलकर देश छोड़ के चले गए थे, जो भारत माँ की अंक खंडित कर गया, तो आज वही लोग क्यों देश में आएंगे? उसका नाम क्यों होटल लिस्ट में रहेंगे? रोहिंग्यास आर ओनली वेलकम गेस्ट इन दिस स्टेट ऑफ। आप ये चले जाइए अब साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ डीआरडीओ का संयोग है। काफी डिफेंस इक्विपमेंट्स का डिजाइन जो लोग बनाते हैं, उसका दीवार का पीछे रोहिंग्या बैठे हुए हैं। 3 बार इंस्टीट्यूशन के हेड जा चुके हैं। हम पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया जो कम से कम एविक्शन करो, कुछ नहीं हुआ। आप विधाननगर पुलिस कमिश्नर पे चले जाए, उसका पीछे रोहिंग्या बैठे हुए हैं। रोहिंग्या के लिए दान पत्र रख दिया गया। तो ऐसा चल रहा है। आप जिस जगह पे बैठ रहे हैं, ये सॉल्ट लेक, ये इस देश का मैंने स्वतंत्र भारत का प्लांट सिटी था। ये पहला प्लांट सिटी। इसका बाद इसको थोड़ा बहुत इससे ये सिटी थोड़ा इन्फ्लुएंस किया इस मॉडल। उसका बाद चंडीगढ़ बना। आज चंडीगढ़ को देखिए और इसको देखिए, ये तो आपको एक ओल्ड एज होम दिखाई देगा। अभी तक स्मार्ट सिटी बन नहीं पाया। किसी भी केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हो रहा है। 43 रेलवे प्रोजेक्ट्स आर बीइंग स्टॉल्ड बिकॉज ऑफ द लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम। If a government doesn't have any comprehensive land policy, so for investment is concerned, or whether it's a different development working terms, you can do nothing. समीक्षा, आप बांग्लादेशीज की बात कर रहे हैं, आप रोहिंग्यास की बात कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी इसको लेकर के भाजपा के ऊपर हमलावर है और वो कहती है कि अगर बांग्लादेशीज का आपको मुद्दा उठाने का कोई हक नहीं, क्योंकि आपने शेख हसीना को रिफ्यूज किया हुआ है। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? नहीं, हम लोग तो ममता जी का जो रहा है उसी पे चल रहे हैं। वो इंस्पायर्ड बाय ममता बनर्जी। What she did in the year 2005, she threw lots of paper to the on speaker table, and she said the entire voter list of West Bengal pulled by Bangladeshi infiltrators, and it's a misdeed of CPIM. तो उस दिन ममता जी को घुसपैठिया दिखाई दे, आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम तो ममता जी का राह पे चल रहे हैं। संस्कृत में कहावत है ना, महजनों का दूसरा पंथा। तो वो हम लोग तो दीदी का रास्ते में ही चल रहे हैं। तो ये हर पश्चिम बंगाल की नागरिक का उसका मन की बात है। जब भी नहीं तो कभी नहीं। अभी ये स्टेट रहने लायक नहीं है। आफ्टर द बांग्लादेश फियास्को, व्हाट हैपेंड इन मालदा, इन मुर्शिदाबाद, अब वहाँ रविंद्रनाथ की प्रतिमा तोड़ा जा रहा है और पश्चिम बंगाल की मालदा जिला का तृणमूल कांग्रेस का स्टूडेंट लीडर रविंद्रनाथ की तस्वीर पे आग लगा रहा है। बांग्लादेश का जन्म मिसेस गांधी ने दिया था। उसका नाम पर जो बांग्लादेश का जो इंदिरा गांधी कल्चरल एसोसिएशन था, उसका 70,000 किताब को चला दिया गया। तो देखिए, एक मानसिकता, एक भावनाओं को आप सोचिए। जिस भावनाओं से नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला फूंक दिया गया, तोड़ दिया गया, जिस भावनाओं से सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी को तहस नहस कर दिया, उसी भावनाओं से मुर्शिदाबाद में प्राइवेट ट्यूटर का लाइब्रेरी जला दिया और उसको तलवार लेके उसके ऊपर कूद पड़ा। भावना एक ही है। तो ये रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। इट्स अ कैंसर टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। इट्स अ मीनस टू ह्यूमन सिविलाइजेशन। किल इट बिफोर इट किल्स यू। That is our stand. ये एक, अगर इस चुनाव को हम लोग देखें तो ये चुनाव कहीं ना कहीं SIR के आसपास घूम रहा है। अगर हम लोग ममता बनर्जी 12 स्टेट में SIR चल रहा है। मैं समझ गया दादा, मैं उसको काट नहीं रहा हूँ। माय कंसर्न इज कि अगर ममता बनर्जी का कार्यकाल देखा जाए तो बहुत सारे स्कैम्स रहे, करप्शन के आरोप लगे, जैसे और आरजेकर जैसे तमाम चीजें हुई। आपको नहीं लगता है कि SIR के आड़ में ये चीजें दब गई? ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल का जनता टीचर राजनीतिक सोच के मामले में बहुत सचेत है।
करप्शन एंड तृणमूल कांग्रेस इज सिनोनिमस। अगर कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि करप्शन इज अ बेसिक मीनस टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो तो दूसरा बात हो गया, लेकिन जनता समझते हैं ममता जी एसआईआर का नाम पर सारे काले कारतूते छुपाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो मिसडीड है वो तो विजिबल है। आप किसी गांव में चला जाइए ना, तो सरपंच के घर का साइज देख लीजिए, उसका महल देख लीजिए, और गरीब तबके के लोग देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना रुपया नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? नरेगा फंडिंग नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? केंद्र सरकार का साफ कहना था तुम लोग पैसा लो मगर हिसाब दो। इसका कहना है पैसा तो हम लेंगे, हिसाब नहीं, वो हमारा अधिकार क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन हिसाब देने का अभ्यास मेरा नहीं है। तो क्या चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो एंसरेबल टू समवन। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी तो जवाब देना, मतलब उनको जवाब देना, फंड जो दे रहे हैं का पास तो जवाब accountability देना तो चाहिए उनको, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू फेस द सीएजी तो सो दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम फंड दे रहे हैं तो और रेवड़ी बांटने का काम नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसी जगह से हम लोग को लौट के आना है। इसलिए हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल में जनता के जो रिजनमेंट है, तो ड्रॉप बॉक्स के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, हमारा जितना आज की सोशल मीडिया का माध्यम होता है उससे जरिए हम लोग कलेक्ट किया, उसका कंपाइलेशन करके हम लोग चार्जशीट और उसका साथ साथ संकल्प पत्र बना लिए और जनता इसको एक्सेप्ट भी किया। पिछले 2 दिनों से जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर, ये काफी कंट्रोवर्सी हुई। पीएम ने नहीं, कंट्रोवर्सी कोई जगह नहीं है इसमें। ये जनता का आंख खोल दिया जो देख रहे हैं जिस राज्य के मुख्यमंत्री महिला है वो महिला बिल का विरोध कर रहे हैं। वही मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस का स्थिति क्या है? कांग्रेस एक पैरासाइट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस का काम है सिर्फ विरोध करना। कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो पहले की तरह मैच्योर नहीं है। बिहार में तो गए एक ही बात बोलने के लिए, क्या जवाब मिला? हरियाणा क्या हुआ? दिल्ली क्या हुआ? अभी कांग्रेस का चेक ना किसी जगह कैश नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी कह रही है कि विमेन्स बिल के नाम पे डिलिमिटेशन का एजेंडा बीजेपी बढ़ा रही है। ममता बनर्जी का कोई भी स्टेटमेंट का आज पश्चिम बंगाल में एक्सेप्टेंस नहीं है, उसका जनमानस में उसका कोई प्रभाव नहीं है। जनता का बीच में एक ही बात है, 4 मई दे दी गई, खेल खत्म। उसका जो वृत्त था वो समाप्त हो गया। अभी सोशियोलॉजी बोलिए और पॉलिटिकल साइंस बोलिए, इस दोनों अगर सत्य है तो ममता जाना भी सत्य है। ये तो काल के नियम पे जा रहे हैं और काल की कपाल पे लिखा हुआ है कि 2026 के चुनाव में इसका विसर्जन निश्चित है। आप आश्वस्त हैं चुनाव को लेकर के बीजेपी जीतने जा रही है और ममता जा रही है, लेकिन जब आप लोगों के बीच में जाते हैं एक प्रश्न उठता है कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी नहीं है, बीजेपी कोई किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ा। हमारा सारा देश में एक ही फेस है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दुनिया का सबसे लोकप्रिय जो है वो नरेंद्र मोदी है। विपरीत अर्थनैतिक स्थिति पे जो भारत को एक जगह पे खड़ा कर दिया, जीडीपी 1 नंबर हम है, और सारे अर्थव्यवस्था दुनिया में जो है, सारे इंस्टीट्यूशंस जो स्वीकार कर रहे हैं कि अगर किसी जगह पे भी कोई चिंगारी दिखाई देता है, रोशनी दिखाई देता है, तो वो भारत है। चीन भी हमारे नीचे चलेगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का बावजूद और 120 देश को सहायता करने का बाद भी नरेंद्र मोदी जी आज तक किसी सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया। पश्चिम बंगाल में आप देखिए, चाहे पीएम विश्वकर्मा हो, चाहे पीएम जनमन हो, पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना हो, आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो, ये पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, कारण है वेंडेटा पॉलिटिक्स। तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर पश्चिम बंगाल ने अडॉप्ट कर लिया लेफ्ट के रिजीम से, उससे बाहर नहीं आ पाए। ममता बनर्जी का एक ही कमिटमेंट था, जो रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग समाज में बदलाव लाएंगे, बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली, वन हेजीमोनी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर हेजीमोनी। तो ये नहीं चल सकते। दादा, अगर हम लोग चुनाव की बात करें और
फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें तो अभी भारत में सभी जगह चुनाव शांतिपूर्ण होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। बंगाल में ये नहीं हो पाता है। हाल में ही कई सारे नेताओं को, टीएमसी के नेताओं को देखा गया है कि वो जनता को धमकाते हुए नजर आते हैं। ये तृणमूल का एजेंडा है। टीएमसी का जो लीडर है निर्मल दत्ता, उसकी गिरफ्तारी होती है लेकिन उसको बेल दे दिया जाता है। ऐसे में किस प्रकार हेल्थ के आधार पे ऐसे में कैसे हो पाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन? और जो छापा वोट का जो यहाँ पे कल्चर है जो इस बार नहीं होगा लग रहा है। ये देखने का दायित्व तो चुनाव आयोग का है, एक संवैधानिक संस्था। सुप्रीम कोर्ट भी इस बार के चुनाव में इंटरवीन किया। आई थिंक उसका भी दायित्व बनता है कि किसी भी राज्य में किसी भी इंसान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो बरकरार है। ये होना चाहिए। आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट केम आउट in the year 2021, 2nd May, within 27 days, 56 BJP workers have been killed by Trinamool Congress. And 27 BJP Mahila workers came in front of the camera and said, we have been gang raped by Trinamool Congress. Even I met some rape victims also. अब तो जानते ही है दूसरा देश राज्य से इस जगह का माहौल ज्यादा है, लेकिन इतना कार्यकर्ता का देहांत होने का बाद भी, हम लोगों से छीन लेने का बाद भी, हम लोग खड़ा है बूथ में, कार्यकर्ता जिंदा है, वो भी ठान लिया है। अभी देख लेंगे। अंतिम सवाल, फर्स्ट फेज में तकरीबन 160 सीटों पे चुनाव होना है। बीजेपी कितनी सीटें इसमें जीत पाएगी? We will going to form a government with a comfortable majority. हम कोई संख्या के ऊपर विश्वास नहीं रखते और हमारा जो संगठन के हिसाब से संख्या है, हम उसको बोल नहीं पाएंगे। हमारा जो पास जो आंकड़ा है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट है, हमारा जो प्लानिंग है, वो तो चुनाव का दिन कैसा होगा उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन कुल मिला के हम आपको बोल सकते हैं, एकदम किसी का हाथ नहीं पकड़ के, किसी पार्टी को नहीं तोड़ के, हम लोग एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी से चुनाव सरकार बना लेंगे और संख्या इतना दूर तक जाएगा जिसका कल्पना तो लोगों को नहीं है। बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट आश्वस्त है इस बात को लेकर कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने चाह रही है। तमाम समस्याएं हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनको भरोसा है जनता के ऊपर और इनको लग रहा है कि जो 2021 में हुआ वो 2026 में रिपीट नहीं होगा और इस बार भाजपा सरकार बनाएगी। दादा, ऑर्गेनाइजर से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।